Writing and its systems. This is the fifth unit of BA program first year students of English B, and in this video I am going to explain passage number 3 and some questions and answers related to this passage. So this video is going to be very important for you because in this video you will learn the passage and also the questions and their answers related to this passage. So try to understand this passage in English first. When symbols represent words or parts of words, they are called logographs or characters. Modern Chinese and Japanese languages have some 2000 and 1850 logographs and characters respectively. Scientific and mathematical notations are modern logograms. These symbols are widely used in modern written languages. Their spoken versions vary from language to language. For instance, O may be pronounced as 0 and not. The three forms discussed above are found mainly in the early stages of writing. With alphabets, we come to a system that shows a clear relationship between the symbols and the sounds of the language. This makes it the most economic and adaptable of all writing systems. Most alphabets contain 20 to 30 symbols. Most languages do not have just one symbol or letter or character for each sound. Languages vary greatly in their sound symbol relationship. At one extreme, we found languages such as Spanish and Finnish, which have a very regular system. At the other end, we find English and Gaelic, where there is a marked degree of irregularity, so that people have to spend a lot of time learning arbitrary spelling. English has letters for both consonants and vowels, but there are languages such as Arabic and Hebrew that only have consonantal letters. The vowels are indicated uses diacritic markings, which are optional. In the alphabets of India, diacritics are used for vowels, but the marking is compulsory, with the diacritics being attached to the consonantal letters. Let's try to understand this passage in Hindi also. When symbols represent words or parts of words, they are called logographs or characters. जब symbols वर्ड्स को या वर्ड्स के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबल्स लोगोग्राफ्स या कैरेक्टर्स कहलाते हैं. मॉडर्न चाइनीज एंड जापानीज लैंग्वेजेस हैव सम 2000 and 1850 लोगोग्राफ्स और कैरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली. ये जो मॉडर्न चाइनीज लैंग्वेज है और मॉडर्न जापानीज लैंग्वेज है, इसमें क्रमशः मतलब पहले वाला जो नंबर है वो चाइनीज़ का है, 2000 जो वर्ड्स और 2000 लोगोग्राफ्स और कैरेक्टर्स हैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज के हैं, और 1850 लोगोग्राफ्स और कैरेक्टर्स हैं ये जापानीज लैंग्वेजेस में विद्यमान है. साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल नोटेशंस आर मॉडर्न लोगोग्राम्स. ये जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं इनको मॉडर्न लोगोग्राम्स कहा जाता है. लोगोग्राफ्स नहीं, लोगोग्राम्स कहा जाता है. दीज सिंबल्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न रिटन लैंग्वेजेस. ये सिंबल्स आजकल बहुत ज़्यादा जो आधुनिक रिटन लैंग्वेज है, रिटन भाषाएं हैं, उनमें इनका उपयोग होता है. देयर स्पोकन वर्जन्स वेरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. लेकिन इनका जो बोलचाल वाली जो भाषा है, स्पोकन वर्जन है, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है. ओ मे बी प्रोनाउंस्ड एज 0 एंड नॉट. जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान सकते हो, फॉर इंस्टेंस ओ को कहीं 0 कहा जाता है तो कहीं नॉट कहा जाता है, तो स्पोकन में डिफरेंस आ गया. द थ्री फॉर्म्स डिस्कस्ड अबव आर फाउंड मेनली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ राइटिंग. ये जो थ्री फॉर्म्स हमने ऊपर पढ़ी, कौन सी, लोगोग्राफ्स, लोगोग्राम्स, कैरेक्टर्स और ये जो स्पोकन वाली बात है, ये जो थ्री फॉर्म्स हैं ये अर्ली स्टेजेस की राइटिंग मानी जाती हैं. विद अल्फ़ाबेट्स वी कम टू अ सिस्टम that shows a clear relationship between the symbols and the sounds of the language. ये जो अल्फ़ाबेट की बात अगर की जाए तो अल्फ़ाबेट का इस सिस्टम के साथ एक स्पष्ट रिलेशनशिप है, और ख़ास तौर से जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है, सिंबल्स और साउंड्स. लैंग्वेज के सिंबल्स और लैंग्वेज के साउंड के साथ
इन अल्फ़ाबेट्स का काफ़ी क्लियर, काफ़ी स्पष्ट रिलेशनशिप है, काफ़ी स्पष्ट संबंध है, काफ़ी स्पष्ट रिश्ता है. दिस मेक्स इट द मोस्ट इकोनॉमिक एंड अडेप्टेबल ऑफ ऑल राइटिंग सिस्टम्स. और यही बात इसको सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक और अडेप्टेबल यानी कि अडेप्ट करने लायक, स्वीकार करने लायक इसको बनाती है राइटिंग सिस्टम्स में, सभी राइटिंग सिस्टम्स में. मोस्ट अल्फ़ाबेट्स कंटेन 20 to 30 सिम्बल्स. अधिकतर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें ज़्यादातर 20 से 30 सिम्बल्स होते हैं. मोस्ट लैंग्वेजेस डू नॉट हैव जस्ट वन सिंबल और लेटर और कैरेक्टर फॉर ईच साउंड. जो अधिकतर भाषाएं हैं उन भाषाओं में एक साउंड के लिए केवल एक सिंबल या केवल एक लेटर या केवल एक कैरेक्टर नहीं होता. एट वन एक्सट्रीम वी फाइंड लैंग्वेजेस सच एज स्पेनिश एंड फिनिश विच हैव अ वेरी रेगुलर सिस्टम. अगर हम इन दो भाषाओं की बात करें जिनमें उदाहरण के लिए स्पेनिश और फिनिश है, तो ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि विच हैव अ वेरी रेगुलर सिस्टम. इनका एक बहुत ही नियमित सिस्टम है, बहुत ही रेगुलर सिस्टम है. एट द अदर एंड, वहीं दूसरी तरफ वी फाइंड इंग्लिश एंड गैलिक. वहीं दूसरी तरफ जो लैंग्वेज है इंग्लिश और गैलिक, विच वेयर देयर इज अ मार्क्ड डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली अनियमितता है. सो दैट, ताकि पीपल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग आर्बिट्ररी स्पेलिंग. सो दैट पीपल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग आर्बिट्ररी स्पेलिंग. इसी कारण से लोगों को इनकी स्पेलिंग्स, जो काल्पनिक स्पेलिंग्स बनी हुई हैं, उनको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है. इंग्लिश हैज़ लेटर्स फॉर बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स, बट देयर आर लैंग्वेजेस सच एज अरेबिक एंड हिब्रू दैट ओनली हैव कॉन्सोनेंटल लेटर्स. इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो दोनों के लिए लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के लिए भी और वोवल्स के लिए भी. बट देयर आर लैंग्वेजेस सच एज अरेबिक एंड हिब्रू, लेकिन कुछ ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं, उदाहरण के लिए अरेबिक लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज, दैट ओनली हैव कॉन्सोनेंटल लेटर्स, जिनमें केवल वर्णात्मक अक्षर होते हैं, केवल कॉन्सोनेंटल लेटर होते हैं. द वोवल्स आर इंडिकेटेड यूजिंग डायक्रिटिक मार्किंग्स विच आर ऑप्शनल. और इनमें जो वोवल्स होते हैं वो डायक्रिटिक मार्किंग्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऐच्छिक होते हैं. अब ये डायक्रिटिक्स मार्किंग क्या होता है, इसको कहते हैं ध्वनि चिन्ह. तो ध्वनि चिन्हों का उपयोग होता है किसके लिए? ध्वनि चिन्हों का उपयोग होता है ध्वनि के लिए, साउंड के लिए, सुर निकालने, स्वरों के लिए इन भाषाओं में. किसमें? अरेबिक और हिब्रू लैंग्वेजेस में. लेकिन वो भी ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल होता है. इन द अल्फाबेट्स ऑफ इंडिया diacritics are used for vowels, but the markings is compulsory. In the alphabets of India, diacritics are used for vowels, but the markings is compulsory, with the diacritics being attached to the consonantal sounds. यहाँ इंडिया की लैंग्वेज के बारे में बताया गया कि भारत की वर्णमाला में स्वरों के लिए स्वर चिन्हों का प्रयोग किया गया है. भारत की जो भाषा है, भारत की जो वर्णमाला है, उसमें स्वरों के लिए स्वर चिन्हों या मात्राओं का प्रयोग किया गया है, पर मात्राओं का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मात्राओं का प्रयोग नहीं करेंगे इंडियन लैंग्वेज में, या मान लो हिंदी की लैंग्वेज उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अगर हम मात्रा ही नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सही मीनिंग निकल रही है उस वर्ण की. तो मात्राओं का प्रयोग अनिवार्य है तथा मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ जोड़ दिया जाता है, तभी सही वाक्य जो आप कहना चाहते हो, सही जो भाषा आप बोलना चाहते हो, उसका सही मीनिंग निकल पाता है. तो ये था पैसेज और उसका हिंदी अनुवाद. अब हम कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंक्शन लाइज बिटवीन लोगोग्राफ्स एंड लोगोग्राम्स. शब्द चित्र और शब्द चिन्ह के मध्य क्या अंतर है.
यहाँ आपको समझाया गया है कि शब्द चित्र वे प्रतीक हैं जो शब्दों या शब्दों के भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शब्द चिन्ह वैज्ञानिक व गणितीय अंकन है। प्रथम का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जबकि द्वितीय के बोले जाने वाले अनुवाद प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो प्रथम है शब्द चित्र, उसका तो एक स्पष्ट अर्थ होता है, लेकिन जो सेकंड है शब्द चिन्ह, उसका अलग अलग भाषा के अकॉर्डिंग अलग अलग अर्थ निकल सकता है, भिन्न भिन्न डिफरेंट मीनिंग उसकी हो सकती है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें पूछा गया है कि वाई आर अल्फ़ाबेट्स कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इकोनॉमिक एंड अडेप्टेबल ऑफ ऑल राइटिंग सिस्टम्स। अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला को किस कारण समस्त लेखन शैलियों में सबसे अधिक इकोनॉमिक एंड अडेप्टेबल माना जाता है? तो इसका आंसर है अल्फ़ाबेट्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इकोनॉमिक एंड अडेप्टेबल ऑफ ऑल राइटिंग सिस्टम्स बिटवीन द सिंबल्स एंड साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट को प्रतीक व भाषा ध्वनियों के मध्य सर्वाधिक इकोनॉमिक और अडेप्टेबल लेखन व्यवस्था माना जाता है। यानी ये जो अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट को प्रतीक और भाषा ध्वनियों के मध्य, प्रतीक और भाषा ध्वनियों के मध्य, प्रतीक यानी सिंबल्स और भाषा ध्वनि, भाषा ध्वनि का मतलब यहाँ पे साउंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो साउंड्स ऑफ लैंग्वेजेस और सिंबल्स के बीच इन अल्फ़ाबेट्स को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और अडेप्टेबल माना गया है सभी लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, वाई आर स्पेनिश एंड फ्रेंच अनलाइक इंग्लिश कंसीडर्ड टू हैव रेगुलर सिस्टम। किस कारण से अंग्रेजी के विपरीत स्पेनिश व फ्रेंच भाषा को नियमित व्यवस्था युक्त माना जाता है? यानी कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से अंग्रेजी के विपरीत किन दो भाषाओं को, स्पेनिश भाषा को और फ्रेंच भाषा को, नियमित और व्यवस्था युक्त माना जाता है? तो इसका आंसर है स्पेनिश एंड फ्रेंच अनलाइक इंग्लिश आर कंसीडर्ड टू हैव रेगुलर सिस्टम बिकॉज द लेटर इज मार्क्ड विद अ डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि स्पेनिश व फ्रेंच भाषाओं को इंग्लिश के विपरीत नियमित माना जाता है क्योंकि अंग्रेजी में पर्याप्त सीमा तक अनियमितता है। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में ये 3 क्वेश्चन और उनके आंसर्स यहाँ पे बताए गए थे और उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप you have understood all these things which I have explained in this video. So don't forget to subscribe this channel so that you can get such more information and knowledge with the help of my channel. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.